Okay, ji. Assalamu alaikum. Welcome back to the today's discussion. Uh, Before starting today's topic, we will discuss the yesterday's concepts for a brief moment of time. We discussed the ionization of weak acids and weak bases yesterday. उसको हल्का सा हम रिवाइज करते हैं. We had discussed in detail that water molecule, although it is a neutral molecule, but it acts as a dipole and attracts the charged substances. We are very much clear about this concept. Let's enhance this concept. But acids or they can dissociate and they can convert themselves into their respective components. Acids, they have the ability to donate proton, whereas bases, they have the intrinsic ability to accept the protons. So these are the basic properties of acids and bases. अब एक पेशेंट है, उसने एस्प्रिन ली विच इज एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, उसने पानी के साथ एस्प्रिन खा ली. जब वो स्टमक में जाती है, स्टमक के अंदर जो पीएच होती है वो हमें पता है दैट इज टुवर्ड्स द एसिडिक साइड. एसिडिक साइड मीन देयर इज अबंडेंस ऑफ प्रोटॉन्स. ऑब्वियस सी बात है, मोर प्रोटॉन्स, मोर हाइड्रोजन एटम्स, द मोर इज द एसिडिक पीएच. तो स्टमक की पीएच हमारे पास 2 to 3 है विच इज एसिडिक इन नेचर. अब जो एक एसिडिक ड्रग एस्प्रिन हमने खाई, वो जब स्टमक में जाती है, देन व्हाट विल बी द direction of dissociation of this acid, which is aspirin in this case, and how will we understand that whether it will be lipid soluble or water soluble. So please follow my pointer once again. आप बेटा नीचे देख सकते हैं, दिस इज एसिड. आप अज्यूम करें कि ये जो एसिड है ये एस्प्रिन है. तो जैसे कि हमने बात की कि जी स्टोमक के अंदर ऑलरेडी प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हैं. दीज प्रोटॉन, दिस हाइड्रोजन एटम, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन. अब चूंकि प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो जो डिसोसिएशन होगी एसिड की, एस्प्रिन की, वो होगी फ्रॉम right side to the left side as per this equation. Why? Because as per law of mass action, the abundance or the quantity or concentration of the reacting substances, it determines the direction of reaction. जैसे कि हमें पता है बेटा कि स्टोमक के अंदर हमारे पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैं. हमने एस्प्रिन ली, ठीक है, वो मैक्सिमम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. This one, please follow the pointer. So this is the uncharged form. Why? Because we know that direction will be from right to the left just because of abundance of protons in the stomach. अब ये जो हमारे पास uncharged form है acid की, this will be lipid soluble. Why? Because this is uncharged form. It will not be attracted by the water. Conversely, it will be lipid soluble in nature. So lipid soluble thing है, so this will be rapidly absorbed from the lining of the mucosa of the stomach. So yes, we can say that acids, they are better absorbed in the acidic media, because in the acidic media, due to abundance of protons, the reaction of dissociation of acids, it moves from right to the left side and it makes the acids sort of neutral molecule, sort of uncharged molecule. अब यही एसिड बेटा जब जाता है ड्यूडेनम जेजुनम में, वी नो दैट इन द जेजुनम ड्यूडेनम द पीएच इज मोर अल्कलाइन, above 7. So in alkaline pH, we can say that there will be deficiency of protons. यही एसिड जब स्टोमक से चला जाता है ड्यूडेनम में, तो वहां पे प्रोटॉन बेटा ये कम होंगे. जब ये प्रोटॉन बेटा बहुत कम होंगे, then the reaction direction will be from left to the right side. So we can say that all the acids, when they will reach in the alkaline medium or the basic medium, then the direction of reaction will be from left to the right side because of deficiency of these protons. अब ये protons कम है, इस साइड के राइट साइड के हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कम है, देन ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारे पास फॉर्म है एसिड की, ठीक है, दिस विल बी इन अबंडेंस इन द ड्यूडेनम. व्हाई? बिकॉज हमने अभी पीछे डिस्कशन की है कि स्टोमक के अंदर ये वाली फॉर्म अबंडेंस में बन जाती है, ये वाली फॉर्म, क्योंकि more and more acid was in this form in the stomach. अब जब ये फॉर्म बेटा जाती है हमारी ड्यूडेनम में, तो इसकी अमाउंट ज्यादा होती है ड्यूडेनम के अंदर, जबकि वहां पे प्रोटॉन्स बहुत कम होते हैं. तो ऑब्वियसली द रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम the reaction will continue or start from left to the right side. जब ऐसा reaction होगा, then there will be more and more formation of this uncharged form. At this point, the acid, it will start giving the protons to fulfill the deficiency of protons. आप ऐसे भी कह सकते हैं
but this charged form, it will be in excess in the duodenum. So this is the charged form. We know that water acts as dipole and it attracts the charged substances. So this form of acid, it will be water soluble, and we can say that this water are not absorbed from the duodenum. अच्छा, एक बेटा क्वेश्चन आया था प्रॉफ के अंदर, किस साल आया था ये मुझे अब नहीं याद। आप में से देखते हैं कौन बच्चा मुझे बताना चाहेगा। क्वेश्चन बेटा ये आया था कि एक इमरजेंसी है, और इमरजेंसी है किस चीज की है जी? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अक्यूट फेज ऑफ एमआई, उसके चेस्ट पेन हो रहा था लेफ्ट साइड पे। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उसमें हम एस्प्रिन देते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर मेडिसिन। एस्प्रिन देते हैं, बेटा ग्लोबिडोग्ल देते हैं एंड बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये एक, दिस इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल। इसके बाद एक फर्दर ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसमें क्वेश्चन ये था आपके लेवल का कि जो पेशेंट एमआई के साथ प्रेजेंट किया इमरजेंसी में, उसको एस्प्रिन दी गई, वो च्यूएबल फॉर्म में दी गई। ठीक है, एस्प्रिन की काफी सारी फॉर्म्स होती हैं। वन फॉर्म इज विच कैन बी गिवन सबलिंगुअली। आप जबान के नीचे रखते हैं, जो सबलिंगुअल वेन होती है वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और डायरेक्टली जो मेडिसिन है सीधा पहुंच जाती है कहाँ पे? ब्लड के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी उसको हमने ये सबलिंगुअल नहीं दी, हमने उसको च्यूएबल एस्प्रिन दी। के हमने पेशेंट से कहा कि च्यूएबल एस्प्रिन है, इसको च्यू करके बस स्वॉलो कर लो। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि च्यूएबल क्यों दी उसको? क्योंकि मतलब ओरल ड्रग दी, वो तो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। सबलिंगुअल ड्रग देती है जिसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, डायरेक्टली इनटू द सबलिंगुअल वेन एब्जॉर्प्शन होती है, और पेशेंट जो है बहुत जल्दी एस्प्रिन का इफेक्ट ले लेता। So can anyone please elaborate why chewable form was preferred in this emergency case, जहाँ पे पेशेंट का लाइफ एंड डेथ का मैटर है, उसको severe acute coronary syndrome है? Anyone who can explain this point? मैं आपके माइक जो है बेटा एक सेकंड उनको you can unmute your mic yourself if you want to answer, नहीं तो मैं खुद फिर किसी से पूछता हूँ। रोल नंबर 121 महानूर जी बेटा, why chewable form of aspirin was preferred? सर नहीं आइडिया। ओ बेटा आइडिया लो ना, अभी तो बात की है हमने, सोचो। अच्छा और किसी से पूछते हैं। 116 जेबा रहमान 116 जी बेटा। आप अपना माइक ऑफ ही करते हैं, बहुत शोर आ रहा है बच्चों का। 123 रोल नंबर 123 मिसबा। यस सर। जी बेटा बताओ, why chewable form of aspirin will be preferred? सर नो आइडिया। अच्छा, एस्पिरिन एसिड है कि बेस है बेटा? सर एसिड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कहाँ पहुंचेगा सबसे पहले? सर स्टमक में। स्टमक के अंदर पीएच क्या होती है? सर एसिडिक, एसिडिक हाईली पीएच। एसिडिक। हाईली एसिडिक, शाबाश। ये जो एस्पिरिन है जब हाईली एसिडिक मीडियम में जाएगी तो वहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी कि ज्यादा होगी? सर ज्यादा होगी। क्यों बेटा, क्यों क्यों बताओ, शाबाश। डायग्राम आपके सामने ही है। सर क्योंकि जो एसिडिक ड्रग होती है ना, वो हाईली एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि तब वो न्यूट्रल होती है। क्यों न्यूट्रल होती है? शाबाश। सर क्योंकि उसने प्रोटॉन ले लिया होता है ना हाईली एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जाता है। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Because she told me that due to abundance of these protons, look at the diagram, due to abundance of these protons inside the stomach medium, the direction of reaction will be from right to left side as per law of mass action. So this acid, it will exist in the neutral form and this will be lipid soluble, and more aspirin will be absorbed from the gastric mucosal lining. सो च्यूएबल फॉर्म इज प्रेफर्ड कि आप जितनी भी एस्पिरिन उसको च्यू करा देंगे, ऑलमोस्ट सारी वहां से अब्सॉर्ब हो जाएंगी स्टमक म्यूकोजा से।
तो सबलिंगुअल में टाइम लगेगा, तो उससे बेहतर आप उसको च्यू करा दो, दैट विल बी रैपिडली अब्सॉर्ब एज कंपेयर टू द सबलिंगुअल फॉर्मुलेशन ऑफ एस्प्रिन. So that's the answer why this chewable form was preferred. ओके हो गया. अच्छा, एक और बात बेटा याद रख लो कि जब भी हम ये चाहते हैं कि ड्रग्स हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो विया यूरिन, देयर आर मल्टीपल रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन. अगर हम यूरिन से एक्सक्रीट करना चाहते हैं ड्रग को, तो बेटा ये बात आप आज समझ लो, देन दैट ड्रग शुड बी वाटर सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल. अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी तो ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगी. अगर लिपिड सॉल्युबल होगी तो यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होगी. कौन बताएगा ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग यूरिन में एक्सक्रीट क्यों नहीं होगी और वाटर सॉल्युबल क्यों एक्सक्रीट हो जाएगी? एनीवन बेटा, एनीवन प्लीज. सर एक्चुअली जो वाटर सॉल्युबल होगी वो तो सर फिर देखिए ना ब्लड का पार्ट बन जाएगी, तो फिर ब्लड जब किडनी में से गुजरेगा तो फिर वहां से उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है. लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल होगी वो तो सेल के अंदर चली जाएगी ना, तो सेल तो वहां से पास नहीं करते ना जो उसके वो जो ग्लोमेरुलर वो जो उसका अपरेटस है वहां से वो पास नहीं करेंगे, तो फिर वो यूरिन का पार्ट तो नहीं बन सकते ना. तो ये शायद मुझे लगता है ये लॉजिक के अंदर. काफी हद तक ठीक है. और कोई बच्चा? और बेटा बोल दिया करो, गलत बोल दिया करो. जो सर लिपिड सॉल्युबल होती है ना, तो वो नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो Excellent वाटर बेटा. सॉल्युबल वो एक्सक्रीट हो जाएगी. वेरी गुड पॉइंट बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये देखें जी, ये चीज है. ठीक है. ये जो सेंटर के अंदर सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ नेफ्रॉन. ठीक है. लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई कह लें किसको. और दिस साइड इज द ब्लड, लेफ्ट साइड इन पिंकिश कलर. दिस येलो साइड ऑन द राइट साइड इट इज द यूरिन. अब बेटा अगर तो ड्रग होगी लिपिड सॉल्युबल, दैट इट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द सेल्स ऑफ नेफ्रॉन, ये वाले सेल्स. So we don't want the drug to be lipid soluble. We want that the drug should be water soluble. If it will be water soluble, then it will go in. It will be excreted in the urine because it will not be reabsorbed from the urinary medium कह लें, from the pelvis, renal pelvis, urinary bladder, कुछ भी कह लें. It will not be reabsorbed because it is water soluble. Water soluble substances, they cannot cross the lipid bilayer membrane of any cell. बहुत डिफिकल्टी से क्रॉस करते हैं, बहुत लेस फ्रैक्शन क्रॉस करती है. सो फॉर एब्जॉर्प्शन वी ऑलवेज वांट दैट अ ड्रग शुड बी लिपिड सॉल्युबल, एंड फॉर excretion in the urine via kidneys we always want that the drug should be water soluble. This is the primary concept. So यूरिन के अंदर हम एक आप मेन कॉन्सेप्ट याद रख लें कि यूरिन के अंदर अगर हम चाहते हैं कि ड्रग जो है वो एक्सक्रीट हो जाए, तो हम यूरिन की पीएच को थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट करेंगे. हम बात करते हैं उसी एस्पिरिन की बात करते हैं. पीछे चलते हैं जी बेटा. वही एसिड की बात चली, एस्पिरिन की बात चल रही. अब एस्पिरिन एक बंदे ने टॉक्सिक अमाउंट में ले ली, हम चाहते हैं कि उसकी यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूरिन को हम अल्कलाइन कर देंगे. यूरिन को हम अल्कलाइन कर देंगे बाय गिविंग सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट विल increase the pH of urine. It will cause the pH shift from acidic to the basic side. जब pH जो है basic हो जाएगी due to sodium bicarbonate presence, तो क्या होगा बेटा, then there will be deficiency of protons. pH basic का मतलब है there is less amount of proton available. किसी acid की बात कर रहे हैं, उसी aspirin की बात कर रहे हैं. When there will be less availability of protons because of the basic medium in the urine, then the reaction will मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड. ऑब्वियसली बात है, ये सबस्ट्रेट कम है प्रोटॉन हमारे पास और ये वाला सबस्ट्रेट ज्यादा है, the reaction will move from left to the right side. So due to this movement, the acid or the aspirin which we are discussing, it will appear in the charge form. We all know that charge substances, they are attracted by the water dipole and they become water soluble. Once the aspirin or the acid is water soluble, then it will not be reabsorbed back into the nephron cells, rather they will appear in the urine for the excretion. So that's the reason. ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बेटा अभी आपके सीनियर्स को G8 को प्रॉफ के अंदर. एक पेशेंट है, उसने एस्पिरिन ले ली इन टॉक्सिक अमाउंट, इमरजेंसी में प्रेजेंट किया. व्हाट इज द एंटीडोट और व्हाट कुड बी डन एट फार्माकोकाइनेटिक लेवल, व्हाट चेंजेस कैन बी डन टू save the patient or to treat this patient, जो भी आप कह लें. So the answer was that we will give sodium bicarbonate in large amount to make the urine pH alkaline so that the acid may exist in this charge form
and due to this charge form, it will become water soluble and it will be rapidly excreted in the urine. Okay जी, coming towards today's lecture, time बहुत कम है, we have to finish it before 11, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जी सर 1 घंटे से ऊपर तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है, तो छोटा सा लेक्चर है आज बाय द वे. तो बेटा दिस इज टुडेज लेक्चर, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. Roots of drug administration means what different routes can be opted for the drug administration. Okay बेटा, कौन बताएगा what is our primary purpose of administering the drug? हम क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? What do we want from drug at the first level? सबसे पहला हमारा गोल क्या होता है कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करने का, चाहे किसी भी वे में हम ड्रग एडमिनिस्टर करें? चलें पूछते हैं किसी से, कौन बताएगा? 128 हमजा उस्मान जी बेटा, व्हाट इज आवर प्राइमरी गोल? सर फर्स्ट गोल यही है कि वो अपने टारगेट जहां वो उसके मतलब हमारा गोल है वहां तक से वो पहुंच सके. गोल तो बेटा आपने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, वो तो लास्ट गोल है ना, कि जब टारगेट पे पहुंच गई तो इसका मतलब है बस होने तक काम हो गया. मतलब आप निकलते हैं लाहौर से, आपका टारगेट क्या है जी? डीजी खान. लेकिन डीजी खान पहुंचने से पहले कोई और गोल तो होगा ना, कि कहीं गाड़ी रुक जाए, कुछ मैं सर ब्लड में पहुंचना, एब्जॉर्प्शन होना उसके. वेरी गुड बेटा, फैंटास्टिक आंसर. द फर्स्ट गोल इज कि ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच जाए, क्योंकि वंस द ड्रग विल बी इन द ब्लड, द ड्रग विल बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, क्योंकि ब्लड तो बेटा हर जगह जाता है बॉडी के अंदर. तो डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. शाबाश, दिस इज द फर्स्ट गोल. सो हम ब्लड तक पहुंचाने के लिए बेटा हम डिफरेंट रूट्स यूज करते हैं. So all the routes which we opt, whether it is injectable route, it is oral route, or any other route, so these routes, they are very important in different clinical situation and settings. So we will discuss very briefly about those routes, what are different routes and what is their significance, what are their advantages and what are their disadvantages. So we will discuss one by one. So what are different factors which affect the choice of route? आप किस वक्त कौन सा रूट प्रेफर करेंगे, उसके कुछ फैक्टर्स हैं which determine this decision. The first is the physical and chemical property of drug. For example जी insulin है, you cannot take insulin by oral route. Why? Because once it will be in the stomach, it will be rapidly destroyed and hydrolyzed. Why? Because insulin is a peptide, the protein की family से belong करते हैं, and all the peptides they are destroyed by the enzymes present in the stomach. So yes, we can never give it by this route, but there are drugs which can be given by oral route. The oral route is the most commonly used route in many settings. The next factor which affects the choice of route is the target site of action. हमें पता होना चाहिए कि हमने ड्रग को पहुंचाना कहाँ पे. अब आई में आपने कोई इन्फेक्शन ट्रीट करना है तो यू विल प्रेफर कि आप आई ड्रॉप्स यूज करो रादर देन कि आप उसको इंजेक्शन लगाओ या आप उसको ओरल मेडिसिन दो. यस, यू कैन गिव बाय injectable form, you can give medicines by oral form to treat the eye infection, but if the infection is local and if the infection is confined to the superficial areas of eye, then we will prefer the droplet form or the eye drops to treat the infection rather than opting other routes. Similarly, what is our desired goal? If we want to treat patient on routine basis, on outpatient basis, or we want to treat patient on इमरजेंसी बेसिस. अब इमरजेंसी बेसिस में जहाँ लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है तो हम उसमें ऐसे रूट्स यूज नहीं करते जिनका एब्जॉर्प्शन का टाइम जिसमें बहुत ज्यादा हो, जैसे ओरल रूट हो गया, ठीक है, जैसे टॉपिकल रूट हो गया, स्किन पे एप्लीकेशन होगी. वी गिव बाय रैपिड रूट which is the intravenous route. Intravenous route is the one of the routes which is highly rapid in action. So it depends कि आप किस सेटिंग में मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं. देन द कंडीशन ऑफ पेशेंट ले सकता है कि नहीं ले सकता. छोटा बच्चा है उसको सिरप फॉर्म में देंगे, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको ऑब्वियस सी बात है इंजेक्शन ही देना पड़ेगा. अनकोऑपरेटिव पेशेंट है उसको भी इंजेक्शन ही देना पड़ेगा, या एक पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता उसको फिर कोई और फॉर्म देनी पड़ेगी. सो दीज आर मेन factors which affect our choice of the route. So we have to take into account all these limitations before prescribing any route.
So this is a simple diagram which is telling us that different routes can be opted. For example, sublingual route, inhalational route, that we inhale the drugs, oral route, we swallow and ingest the drugs, transdermal patch, we apply the patch on the skin, and the patch contains a drug, and this drug keeps on entering into the body. Then we have very famous IV intravenous route, intramuscular route, and subcutaneous route, and then we have topical route. We will discuss them one by one very quickly. So broadly, we classify routes into two main categories, antral and parenteral. कोई बेटा बता सकता है जी what does these two terminologies mean, antral and parenteral? Anyone बेटा? चलिए जी मैं फिर कुछ हेल्प करता हूँ जी आपकी. Zainab Mahmood 140. जी Zainab, unmute your mic. What is meant by antral and parenteral? सर मुझे नहीं पता. बेटा सोचो तो सही. हाँ ऐसे तो ना करो, कुछ मेहनत तो करो ना थोड़ा सा. एंट्रल किससे सिमिलर लग रहा है आपको? एंट्रल जी जैनब, एंट्रल कभी नाम सुना है एंटेरिक ट्रैक का? जी सर. व्हाट इज एंटेरिक ट्रैक? सर डाइजेस्टिव ट्रैक को बोलते हैं. शाबाश, GIT, gastrointestinal tract. Excellent beta. The gastrointestinal tract is called the enteral tract. It is also called as enteral tract. So if we are using the drugs, if we are administering the drugs via enteric tract, then all those routes, they will be labeled as enteral routes. For example, oral route, very famous. Then we have buccal route. We apply drug on the buccal mucosa. We apply them. अभी देखते हैं आगे. Then we have sublingual route. जबान के नीचे हम गोली रख लेते हैं below the tongue, वहां से sublingual vein से absorption होती है. Then we have rectal route. We administer drugs from the rectum. Then we have gingival route. We can apply drugs on the gingiva, gums पे हम apply कर सकते हैं. कोई भी cream, कोई भी ointment, कोई भी drug. So these five, they are the enteral routes, because in all these routes we are using the enteric tract for the administration of drug. Parenteral. Par means other than. So parenteral mean other than enteral. So all the routes other than enteral routes, they are labeled as parenteral. ये बेटा प्लीज इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना. So we can say that all the other routes, they are parenteral. For example, intravascular, intra-arterial. Intravascular, it includes intravenous and intra-arterial. Then we have subcutaneous. Then we have intradermal, intramuscular. Then we have intrathecal, intra-articular, intrapleural, intracardiac. All of these tracts, they are other than the enteric tract, so they are called as parenteral routes, the main and only difference. Then we have topical routes, then we have inhalational route. We will discuss one by one quickly. But before that, I want all of you to please focus at this diagram, keep following my pointer. So these are the different preparations of drugs and the differences based upon their dosage form. The first one on the top, on the left side of your top, as you can appreciate that it is this tablet or this drug, it is labeled as enteric coated tablet. But enteric coated tablet का word आप जहाँ भी सुनो इसका मतलब है that there is external coating around the medicine, external coating, and the purpose of that external. Sorry. सर कितने हॉट इसने बोंगे है बेटा हमटी डमटी इतने अच्छा, यहाँ तो बेटा आप लोगों की अपनी डिस्कशन चल रही है. ठीक है, चलें इसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ. Okay, whenever you come across with the terminology of enteric coated tablet, बेटा जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, then that medicine is subjected to be destructed by the gastric enzymes. So to prevent the drug being destructed by the gastric enzymes, we coat that tablet. We coat that tablet with certain coating so that it may not be destroyed by the स्टोमक एंजाइम प्राइमरीली, क्योंकि स्टोमक के अंदर तो पीएच बहुत लो होती है, एसिडिक होती है, वहां पे फिर डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज्यादा होते हैं, दे डिस्ट्रॉय द ड्रग. अगर हम उसके अराउंड भी ऐसी कोटिंग कर दें जो कि एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व ना हो, लेकिन वो कोटिंग बेसिक मीडियम में, ड्यूओडेनम में जाके वहां पे डिसॉल्व हो जाए वो कोटिंग, और अंदर से फिर ड्रग निकल आए,
So that is the preferred drug or the preferred way to prevent the destruction of drug from the destructive effects of the stomach medium. So that form of tablet is called the enteric coated tablet. आप देख सकते हैं ये tablet है, इसके बाहर blue color की coating है. ये यही मेडिसिन जब स्टोमक में पहुंची तो वहां पे बिल्कुल ये कोटिंग डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन यही मेडिसिन बेटा जब यहाँ पहुंची ड्यूडेनम के अंदर तो इसकी आउटर कोटिंग इंडायरेक्ट कोटिंग बेटा ये डिसॉल्व होगी, अंदर से मेडिसिन निकल आई एंड आफ्टर दैट इट वाज processed and absorbed from the small intestine. The next type is the tablet or capsule. Ordinary tablet, ordinary capsules, पेंसिल्स जो आप खाते हैं बेटा वो आप जब इंजेस्ट करते हैं तो वो सीधा स्टोमक में जाते हैं, वहां पे जाके वो मतलब डिसॉल्व होते हैं और वहां से या नेक्स्ट ड्यूडेनम से उनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप्स, मिक्सचर, इफर्विसेंट सॉल्यूशंस. आप जितने भी ड्रॉप्स या कोई भी चीज पीने वाली सिरप वगैरह लेते हैं बेटा तो वो स्टोमक के अंदर ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है. डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक और बेसिक नेचर उनकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है फ्रॉम स्टोमक. देन वी हैव मैट्रिक्स टैबलेट. बेटा मैट्रिक्स टैबलेट होती हैं व्हिच आर द सस्टेन्ड रिलीज. आपने कभी देखा हो मेडिसिन के आगे लिखा होता है जी SR, सस्टेन्ड रिलीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल बड़ी फेमस टैबलेट है जी हमारे पास, बहुत सारी हैं, एमरल एम SR किस टैबलेट पे लिखा होता है, इट मींस इट इज मैट्रिक्स टैबलेट और यू कैन से दैट इट इज द सस्टेन्ड रिलीज. तो हम चाहते हैं कि जी जो टैबलेट है वो एकदम से डिसॉल्व ना हो, आहिस्ता आहिस्ता हमारे इंटेरिक ट्रैक के अंदर डिसॉल्व होती रहे. स्टोमक में भी कुछ डिसॉल्व हो, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में, और आराम आराम से वहां से ड्रग रिलीज होती रहे. सो दैट जो इफेक्ट है वो सुबह से शाम तक या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो चलता रहे. So rather than taking the medicine again and again after interval of 4 hours 6 hours, तो हम एक मेडिसिन खा लेते हैं SR की. क्लैरिसिड SR बड़ी फेमस ड्रग है जी. XL भी होती है स्टैंडर्ड रिलीज. क्लैरिसिड XL, एमरल MSR, these are sustained release. Then we have tablets which are delayed release. ये delayed release जो होती हैं ये रिलीज ही लेट होती हैं. सस्टेन्ड रिलीज और डिलेड रिलीज में बेटा फर्क ये होता है, सस्टेन्ड रिलीज के अंदर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो टैबलेट से रिलीज होती रहती है, सस्टेन्ड फॉर्म, कांस्टेंट फॉर्म. बट इन केस ऑफ डिलेड रिलीज द ड्रग इज रिलीज्ड after a very long interval. If you can appreciate that this blue circle around the pink tablet, this blue circle, this is the very thick coating, very thick coating. This is not thin enteric coating जैसे ये थी ना thin enteric coating, ऐसा नहीं है. This is very thick coating. तो ये thick coating है, इस thick coating को डिसॉल्व होने में बेटा बहुत टाइम लगता है. देखो ना यहाँ पे देखो हल्की सी डिसॉल्व हुई है thick coating, अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी और डिसॉल्व हुई और बहुत देर के बाद बेटा जब ये पहुंची लार्ज इंटेस्टाइन में तब जाके इसकी सारी के सारी एक्सटर्नल कोटिंग डिसॉल्व हुई, अब जाके ये ड्रग जो है रिलीज होना शुरू हो गई. दिस इज कॉल्ड डिलेड रिलीज. जब हम चाहते हैं कि जो ड्रग N2 के बाद इफेक्ट करना शुरू करे, ड्रग रिलीज ही बहुत ज्यादा लेट हो, दैट फॉर्म ऑफ ड्रग इट इज लेबल्ड एज डिलेड रिलीज. So you have to decide what you are prescribing. Either you are prescribing enteric coated, you are prescribing sustained release form, or you are prescribing delayed release form. So based upon your choice of drug, depending upon the condition of the patient, you can produce the effect or you can delay the effect. Then we have enteral routes. First of all, so enteral routes, they are the one which involve the alimentary canal, GI tract. So most common routes मैंने बता दिया आपको. Take per oral route taken by mouth. Then we have sublingual. Then we have gingival, and we have buccal route. Oral बेटा पढ़ लेना, कुछ मुश्किल नहीं इसके अंदर लिखा हुआ है. What are the advantages of oral route? It is convenient and safe. Everyone knows it is cheaper and most common route. It is self-administrable. You don't need any external help in this route. No need to sterilize the medicine. It is compact and it is the very good route. Syrups, tablets, capsules, pensules. What are the limitations of this route? Drugs may be destroyed by the gastric enzyme. This is the first and foremost limitation. That's why we cannot give every drug by this route. Food may interfere with the absorption of drug. Patients पूछते हैं आपसे सर खाने से पहले खानी है, खाने के दरमियान में खानी है, खाने के बाद खानी है, because there are many drugs in which home absorption is highly affected by the food. For example, tetracycline. If you give tetracycline with the milk, then there will be very less absorption of tetracyclines. Why? Because milk contains calcium. And calcium, it binds with the tetracycline and makes a very tight bond,
and once it makes a bond with the calcium, tetracycline calcium bond, then this molecule, it cannot be absorbed from the gastric mucosa or the intestinal mucosa. So if you are taking the tetracycline with milk, you're destroying the tetracycline. So always take tetracycline with water. Some drugs, they have bad taste, you cannot take those drugs by this route, and some have local irritant effect, they irritate the inner lining of your GI tract, you cannot take those drugs. Some drugs, they cause discoloration of teeth, you cannot take those drugs by this route. And this route, oral route, it is very slow and it is not suitable for emergency purposes. So these are few limitations of this oral route, and they cannot be used in uncooperative patients, for example children, a patient who is having seizure attack, a patient who is presenting an emergency, and some drugs which cause severe vomiting. We cannot use this route in those patients also. So, and the biggest limitation of this route is that this route is affected by the first pass effect. Anyone who has any idea about this, what is first pass effect? फर्स्ट पार्ट इफेक्ट भी कहते हैं बेटा इसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. एनीवन? अच्छा, what do you understand by this terminology, first pass effect? क्या मतलब है इसका? नकीबुर रहमान, एक सेकंड बेटा. You can unmute your mic and you can contribute. What is first pass effect? फर्स्ट पास इफेक्ट का मतलब ये है कि जो हम जीआईटी से ड्रग्स लेते हैं उन्हें पहले हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन से और फिर उसके बाद लिवर से पास होते हुए जाना होता है, तो वहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाती हैं, तो उस वजह से उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. Very good बेटा, fantastic job नकीब, very good, excellent बेटा. You are the man of the match of today's session. Very good. First pass effect is when we are taking drugs by enteral route. Oral नहीं कह रहा बेटा, enteral route. चाहे आप नहीं, not sublingual, ठीक है. If you are taking the drug by oral route primarily, not all the enterals. आगे describe करता हूँ in the diagram. If you are taking the drug by oral route, then it will reach the stomach, then into the intestine. So when it will reach in the stomach and intestine, then the drug will be destructed and hydrolyzed by the environment of stomach and intestine due to the presence of different enzymes. तो उसके बाद जब ये ड्रग एब्जॉर्ब होके जाती है ब्लड के अंदर, तो फुल अमाउंट नहीं जाती, थोड़ी अमाउंट जाती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ड्रग्स. कुछ 50% जाती हैं, कुछ 70%, कुछ 30%, कुछ 10% जाती हैं. जितनी ज्यादा ड्रग डिस्ट्रॉय होगी उतनी ही कम सर्कुलेशन में पहुंचेगी. हमारा प्राइमरी गोल था कि ड्रग कहाँ पहुंचे बेटा, ब्लड सर्कुलेशन में. तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जितनी ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाती है ड्यू टू द मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट्स, ड्यू टू द caused by digestion in the stomach and intestine. So this effect or this phenomena or this metabolism, it is labeled as first pass effect or the first pass metabolism. So as you can see, a significant amount of drug is metabolized in the gut wall, portal circulation and liver. आगे चलते हैं डायरेक्ट बेटा. ये देखो, please focus on this diagram. This is a summary of all the routes. Please follow my pointer. ठीक है. This is the heart. ठीक है जी. This is the right side of heart. This is left side of heart. ठीक है बेटा. ये हमारे पास रेड हमारे पास लेफ्ट साइड का ब्लड है, and this heart is pumping the drug into the general circulation via aorta. लेकिन इस लेफ्ट हार्ट में पहुंचने से पहले ड्रग कैसे और कहां से होके आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं जी ओरल रूट. देखें ये मुंह बना हुआ है जी. ठीक है. ओरल रूट से ड्रग ली, सीधा आई, ये देखें ये आ रही है एसोफेगस में, आ रही है. सबसे पहले बेटा ये पहुंचेगी स्टमक के अंदर. ठीक है. स्टमक में जाने के बाद बेटा ये जो ड्रग है आपकी जाएगी कहाँ, इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन से ये ड्रग एब्जॉर्ब होगी विया पोर्टल सर्कुलेशन. दिस पिंक वन आप कह लें इसको, दिस पिंक सर्कुलेशन, इट इज द पोर्टल सर्कुलेशन. ठीक है. ये सीधा गई बेटा पोर्टल सर्कुलेशन से. पोर्टल सर्कुलेशन से जाने के बाद ये जाएगी कहाँ, लिवर में. लिवर के अंदर होती है हमारी पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एनास्मोसिस कह लें. लिवर से फिर ये इंफीरियर वेना केवा में
और यहाँ से होते हुए ये ड्रग चली जाती है कहाँ पे, हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर। फिर राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये ड्रग जाती है हमारी कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स से फिर ये ड्रग हमारी आती है बेटा कहाँ से, विया पल्मोनरी वेन्स इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो दिस इज द सर्कुलेटरी पाथवे ऑफ द ड्रग। अब लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में या जनरल सर्कुलेशन, चलें बात कर लें आप। जनरल सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले आप देख सकते हैं ओरल रूट के थ्रू जो हमने ड्रग ली थी बेटा, वो काफी पॉइंट्स पे डिस्ट्रॉय होती है। स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, एंड इट विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड इन द लिवर, इट विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड इन द पोर्टल सर्कुलेशन। तो जितनी ड्रग डिस्ट्रॉय होगी, इस सारे फिनोमेना को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और द फर्स्ट पास इफेक्ट। हम कह सकते हैं दैट ओरल रूट हैज द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बहुत सी ड्रग हमारी ज़ाया हो जाती है, बहुत थोड़ी सी पहुंचती है हमारी। उसके बाद आते हैं बेटा रेक्टल रूट में। ये देखो, ये है रेक्टल रूट, ठीक है। अब हमें पता है आप लोगों को कि रेक्टम के अंदर भी एक पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है। तो रेक्टल रूट से हम जो भी ड्रग देते हैं रेक्टम में, तो कुछ ड्रग जो है बेटा वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होती है, जो ब्लू वेन्स, दे आर द सिस्टेमिक वेन्स। कुछ जो ड्रग है वो अब्जॉर्ब होती है डायरेक्टली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और कुछ ड्रग है बेटा वो अब्जॉर्ब होती है विया दिस पोर्टल सर्कुलेशन। तो लेट्स सपोज 50% goes into the general circulation and 50% goes into the portal circulation। तो जो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी ऑब्वियसली वो फिर अब्जॉर्ब होकर जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन में, वहां से जाएगी लिवर में, वहां मेटाबोलाइज होगी, फिर वहां से जाएगी जनरल सर्कुलेशन में। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टल रूट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बट it is partially affected because 50% directly goes into the circulation। तो जो 50% पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है बेटा, सिर्फ वही इफेक्ट होती है। सो वी कैन से दैट रेक्टल रूट हैज द पार्शियल अवॉइडेंस ऑफ दिस इफेक्ट। अब आगे आते हैं बेटा, ये देखो जी, ये बना हुआ जी हमारा सबलिंगुअल एंड बक्कल रूट। ये है जी टंग के नीचे, फॉलो द पॉइंटर, दिस इज सबलिंगुअल, और ये है हमारा बक्कल। ये सबलिंगुअल है बेटा, ये बक्कल है, ठीक है। ये दोनों रूट है। इसमें बेटा डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है इनटू जनरल सर्कुलेशन। प्लीज फॉलो द पॉइंटर, देखें ये वाला ब्लू सर्कुलेशन, direct absorption into general circulation into the heart। So we will say that buccal root, sublingual root, gingival root, they are not affected by this first pass effect. Only and only two roots they are affected by the first pass metabolism. One is the oral root and the rectal root. Rectal root is affected partially। Is that clear beta? Do not say that antral root के through जो भी drug जाएगी that will have the first pass effect। No, only oral and rectal, not buccal, not gingival, not sublingual। इसके अलावा बेटा ये देखें, ये मसल है, मसल में एडमिनिस्टर की सीधा एब्जॉर्ब भी वहां से जनरल सर्कुलेशन में। दिस ब्लू कलर इंडिकेट्स द वीनस सर्कुलेशन। ये हमारा सबक्यूटेनियस रूट हम स्किन के नीचे इंजेक्ट किया, वो भी सीधा गई ब्लू कलर जनरल सर्कुलेशन में। हमने आईवी ड्रग दी, वो भी बेटा गई कहाँ पे, जनरल सर्कुलेशन में। इसी तरह बेटा ये हमारे पास इनहेलेशनल रूट है, फॉलो द पॉइंटर प्लीज। हमने ड्रग इनहेल की, सीधा लंग्स में गई, लंग्स से अब्जॉर्ब होकर कहाँ चलेगी बेटा, जनरल सर्कुलेशन के अंदर। तो ऑल दीज रूट्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। नेक्स्ट, buccal and sublingual। in sublingual we place the drug below tongue। ये देखें बेटा, टंग के नीचे रख देते हैं, तो यहाँ पे होती है फ्रेनुलम के साथ, एक जहाँ पे होती है, एक जहाँ पे होती है। सबलिंगुअल वेन्स होती है बेटा, उन सबलिंगुअल वेन से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की। दिस इज द very good route in certain situations, and this is the buccal route। as you can see that we are placing the drug in between the mucosa of cheek। ये cheek है हमारी, cheek कह लो, lip कह लो, buccal mucosa basically, and the gingiva। ये gums और cheek के बीच में रखते हैं। मतलब काफी लोगों को आपने देखा होगा जो नसवार रखते हैं यहाँ पे, basically they are using the buccal root। so buccal root से नसवार की जो है absorption होती रहती है, वो जनरल सर्कुलेशन में जाती रहती है और पेशेंट को बड़ा सुकून सा आता रहता है। आई डोंट नो कि नसवार का क्या इफेक्ट होता है, जो लोग यूज करते हैं उनसे पूछेगा आप। तो दिस इज द बक्कल रूट। दिस डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग द फॉर्म ऑफ द टैबलेट। जब हमने प्लेस की, आफ्टर 2 आवर्स इतनी अब्जॉर्ब हुई, आफ्टर 4 आवर्स इतनी, और आफ्टर 6 आवर्स काफी सारे अब्जॉर्ब हो गई। तो दिस इज द बक्कल रूट। और इसी तरह बेटा ये जिंजिवा हमारा, जो मसूड़े हैं, जो गम्स है हमारे, वहां पे हम कोई चीज अप्लाई करते हैं, कोई सोल्यूशन, कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई पेस्ट, तो डायरेक्ट जिंजिवा से एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। दैट विल बी लेबल्ड एज द जिंजिवल रूट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज रूट्स? अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास इफेक्ट। सीधी सी बात है बेटा, जनरल सर्कुलेशन में डायरेक्ट चली जाएगी इन रूट से, बकल और सबलिंगुअल से, तो ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। रैपिड एब्जॉर्प्शन बिकॉज़ डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द वेन्स
And drug stability, pH in the mouth is relatively neutral, so drug will not be affected by the pH changes. But what are the limitations? Only small doses can be given, and local irritation can occur, and taste issues can also come. These are examples: nitroglycerin, NGZ tablet, वगैरह वगैरह. Rectal route. If we are giving drugs from the rectum, then that is called rectal route. We can give the drug in two forms. We can give them in solid form. We can give the drugs in liquid form. If the drug form is solid, then that form of drug is called suppository, as for solid beta, as for suppository. And if the form of drug which we are giving from the rectum, it is liquid, then that is called enema. So whether it is suppository or enema, we can give drugs from rectal route. This is the shape of suppository. ठीक है बेटा. अब suppositories हमारे पास बेटा different forms की होती हैं. This is the rectal suppository. If you are giving drug from the rectum, this is the urethral suppository. If you are giving the solid drug from the urethra, and if you are giving the drug from vagina, then that is called as vaginal suppository. In certain cases, we have to give drugs from pervaginal route. This is called urethral route. This is called pervaginal route. This is called the rectal route. So in all the cases, the shape and size of the suppository is different. ठीक है बेटा. So suppository mean if the form of drug is solid, that is called as the suppository. Advantages क्या है बेटा? It is most useful for patients unable to take drugs orally, unconscious patients. If the patient is nauseating and vomits the drugs, then we can give. And this route, which rectal की बात हो रही है, it has partial avoidance of first pass effect. आधी drug direct circulation में जाती है, आधी जो portal में जाती है, उसकी सिर्फ metabolism होती है. Large amounts of drug can be administered, and drugs with unpleasant taste can also be given. So these are the few advantages. What are the limitations of this route? Drugs can have local irritant effect. Absorption may be irregular and slow, and it is embarrassing for the patient. Very, very embarrassing for the patient that you are giving the drug from rectal route. It is the limitation. Constipation में most commonly हम देते हैं bisacodyl या glycerin की suppository. Bisacodyl बहुत अच्छी drug है. One of my favorite drug, bisacodyl. This is the way we insert the suppository into the rectum. This is vaginal route, and this is urethral route. So suppositories can be given via these three routes. Parental routes other than the enteric tract. काफी सारे बेटा. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा कि different routes का हम use कैसे करते हैं. As you can appreciate that how this diagram, it explains how to administer the drugs. तीन की बात की हुई बेटा. सबसे पहले स्किन को डिस्क्राइब करता हूँ बेटा. सबसे ऊपर हमारे पास एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हमारे पास डर्मिस होती है, then we have hypodermis. Hypodermis, it contains the subcutaneous tissue and muscles with veins. If you are administering the drug via intramuscular route, then the angle should be 90 because we have to reach the muscle. We have to cross all these layers and we have to reach the muscle. If you are giving the drug via subcutaneous route, then you have to use the angle of 45 degrees so that you can reach into the subcutaneous area. And if you are giving drug via intravenous route, then the angle should be of 30 degrees. ये diagonal the better है बेटा, ये वाली. In intramuscular route, the angle should be 90. In subcutaneous, the angle should be 45. And in intravenous, the angle should be 25. And in intradermal, if you are administering the drug into dermis, then the angle should be 10 to 15 degree. ये बहुत ध्यान रखना. एंगल ऊपर नीचे हुआ तो आप इंटरडर्मल को सबक्यूटेनियस में भी इंजेक्ट कर सकते हैं और सबक्यूटेनियस को आप इंटरडर्मल में इंजेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपने बेटा बहुत ध्यान रखना होता है while administering the drug. What are the advantages of parental route? It is rapid route. It is useful for unconscious patients. Drugs given by this parental route, they are not inactivated by the gastric enzyme. Smaller doses are required. 100% bioavailability. What is bioavailability? Bioavailability is the fraction of drug which reaches in the systemic circulation in unchanged form. कि जैसे आपने दी वैसे की वैसे कितनी पहुंची. ओरल रूट से देंगे तो मेटाबॉलिज्म के बाद कम पहुंचेगी. आप डायरेक्ट वेन में डाल देंगे, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट ब्लड में डाल लें, जितनी डालेंगे उतनी ही जाएगी. सो वी से दैट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द इंट्रावेनस रूट, इट इज 100%. So these are few benefits of parental route. What are the disadvantages of this parental route? The drugs, before giving, we have to sterilize the
area. It is very, very important because we can cause the administration of infection. जो आप स्किन के ऊपर लोकल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो अंदर जा सकते हैं. So you have to be very careful when you're opting the parental route. It is very invasive and painful. Invasive means you are entering into the body. Invasion कर रहे हैं आप, and this route it needs assistance of another person. आप independently इस route को use नहीं कर सकते. There are chances of local tissue injury अगर आपने damage कर दिया tissue को. Not all medicines can be given as such through injections. सब कुछ नहीं दे सकते. There is risk of embolism, etc. Subcutaneous beta into the subcutaneous tissue. This is the most preferred and favored route in diabetic patients because they have to inject insulin twice or thrice daily into the subcutaneous tissue. So this is the very favored route in those person. बेटा बाकी थोड़ा पढ़ लेना, कोई मुश्किल नहीं इतना. ये रीडिंग करने वाली स्लाइड्स हैं, समझाने वाला कुछ नहीं है. Yes, intramuscular route. Intramuscular route बेटा, हाँ जी कौन बताएगा बेटा? चल लिखा हुआ पढ़ लिया होगा. We can give the injection into deltoid muscle. We can give into the gluteus maximus. हिप पे इंजेक्शन लगा सकते हैं. एक और जगह भी लगा सकते हैं, that is the thigh. ठीक है, मिड थाई में भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं. ये बेटा डायग्राम को देखो, समझो आपको से क्या समझ आ रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा बेटा, इन दो डायग्राम में बेसिकली ये बताया गया है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट साइट ऑफ इंजेक्शन इफ यू आर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग विया gluteal site or if you are administering the drug via this site. Which site? Deltoid site. तो बेटा इसमें देखो, ठीक है, इसमें बेसिकली हमने आर्बिट्रेरी 4 पार्ट्स करने होते हैं हिप के, ऐसे, ठीक है, 4 पार्ट, एंड वी हैव टू एडमिनिस्टर द ड्रग in the upper and outer quadrant. This is upper outer quadrant, this is upper inner quadrant. Upper and outer quadrant पे हमने इंजेक्ट करना होता है because this is the safe area. If you are administering the drug into the lower quadrant and more precisely into the lower inner quadrant, then there are high chances of sciatic nerve injury, which can cause permanent damage, which can cause sciatica, etc., etc. So always administer the drug into upper and outer quadrant of हिप. इसमें भी उसने फिर आगे थोड़ी सी और फिल्म चलाई हुई है कि जी इस अपर क्वाड्रेंट को फर्दर आपने फिर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है और उसका भी आपने अपर लेना है. ठीक है, मतलब आई से दैट इन अपर आउटर क्वाड्रेंट आप कहीं भी इंजेक्शन लगा दें, इट इज एब्सोल्युटली सेफ. इन केस ऑफ डेल्टॉइड 2 फिंगर्स बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, आपने एक्रोमियन प्रोसेस को फील करना है, उसके बाद आपने 2 फिंगर्स ऐसे पुट अप करनी है, उसके बाद जो नीचे एक ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है डेल्टॉइड का. डेल्टॉइड नीचे, डेल्टॉइड की शेप बेसिकली ट्रायंगुलर है इन इट्स लोअर पोर्शन. उस ट्रायंगुलर पोर्शन में आप कहीं भी डेल्टॉइड पे लगा सकते हैं. एक ये तरीका है मेजर करने का. दूसरा मैं कहता हूँ कि जी अपर 2/3 एंड लोअर 1/3 जो है ना, उसका जो जंक्शन है डेल्टॉइड का, ठीक है, ये डेल्टॉइड का ये अपर 2/3 है ये वाला, और जो नीचे वाला है वो लोअर 1/3 है. तो अपर 2/3 लोअर 1/3 के जंक्शन पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे. तो दीज आर द बेसिक साइट्स ऑफ आईएम इंजेक्शन. इंट्रावीनस बेटा पढ़ लेना, गुड, पढ़ लेना, समझाने वाला कुछ नहीं. दिस इज द इंट्रावीनस रूट, ठीक है, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है. इंट्रा आर्टेरियल रूट, इन इंट्रा आर्टेरियल रूट बेटा वी एडमिनिस्टर ड्रग डायरेक्टली इनटू द आर्टरी. आर्टरी लाइज डीप टू द वेन. सुपरफिशियली बॉडी पे वेन्स होती हैं, डीप आर्टरीज होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में हमें आर्टरी के अंदर ही इंजेक्ट करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग एंजियोग्राफी. एंजियोग्राफी करते हुए जो कंट्रास्ट देते हैं वो डायरेक्ट आर्टरी में डालते हैं, आर्टरी में डालते हैं डायरेक्ट. वो जब हम कॉरोनरी आर्टरी के अंदर होते हैं वहां डालते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में नहीं डालते. इसी तरह सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग्स दे कैन आल्सो बी गिवन बाय इंट्राआर्टेरियल रूट. इंट्राडर्मल रूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द डर्मिस.
कोई बता सकते हैं आप में से किस किस ने इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगवाया हुआ है? कोई अच्छा बच्चा बता दे। मुझे पता है किस किस ने लगवाया हुआ है, पूछते हैं जी, 1 मिनट। किससे पूछें, किससे पूछें? 158 फैजान, बताओ बेटा। फैजान, यस सर। आपने कब लगवाया था ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन? सर पता नहीं, याद नहीं है। ऐसे ना कर बेटा, मुझे पता है, तुझे कैसे नहीं पता यार? 10 नहीं पता? किसी को पता है कि किसी ने लगवाया हुआ इंट्राडर्मल इंजेक्शन कि नहीं? अच्छा मैं कहता हूँ आप सब ने लगवाया हुआ इंट्राडर्मल इंजेक्शन, अब तो बता दो यार। सर जो हिफाजती टीके होते हैं वो होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। कौन था हिफाजती टीका? गुड गुड गर्ल। तो बचपन में लगाते हैं पोलियो के लिए और शाबाश, ठीक है ठीक है। यार पोलियो के तो तब टीके नहीं होते थे, तब तो ओरल पोलियो होती थी, उसे कहते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब जो आ गई बेटा डेट इज आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। आईपीवी के टीके अब आए हैं, आपने तो कतरे पिए होंगे ना। तो अच्छा बेटा, उसमें आप अपने अपने राइट डेल्टॉइड पे चेक कीजिएगा, आपको इंजेक्शन का एक निशान होता है, ठीक है? सबको होता है, देखिएगा। वो जो इंजेक्शन का निशान होता है ना, हिफाजती टीके का निशान जिसे आप कहते हैं, दैट इज द इंजेक्शन विच वाज गिवन टू यू एट योर बर्थ, and that injection was given via intradermal route, and that injection was BCG vaccine, Bacillus calmette-guerin। और ये जो टीका होता है बेटा, ये आपको टीबी से बचाता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इट इज आवर नेशनल डिजीज। उसकी वैक्सीनेशन जो हम करवाते हैं, बीसीजी का टीका उसे कहते हैं। पैदा होते ही लगता है, सबसे पहला टीका आपको वही लगता है और उसका यह निशान बन जाता है। तो वो जो टीका बेटा दिया जाता है वो हमेशा इंट्राडर्मल दिया जाता है, वो डर्मिस में लगाते हैं, ठीक है? ये देखो, ये जो डायग्राम बनी है बेटा, ये राइट साइड पे एपिडर्मिस, डर्मिस, मतलब बिल्कुल डर्मिस में लगाना है। उसके नीचे जाओगे तो सबक्यूटेनियस चला जाएगा, सबक्यूटेनियस नहीं लगाना। अब जब डर्मिस में इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे एक रेज्ड एरिया से बन जाता है, ऐसे, ठीक है? जब आप इंजेक्ट कर रहे हैं डर्मिस में और ऐसे एक रेज्ड बबल से बन जाता है या वेसिकल से बन जाता है, दैट इज द कंफर्मेशन कि जी इंजेक्शन डर्मिस में ही गया है। अगर ये ना बने तो इसका मतलब है कि इंजेक्शन आपका सबक्यूटेनियसली चला गया है, व्हिच इज रॉन्ग। इंट्राथीकल, डायरेक्टली इनटू द सीएसएफ। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती, बट हम चाहते हैं कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करें और ब्रेन में जाएं, स्पाइनल कॉर्ड में जाएं, मतलब सीएनएस में जाएं, वहां पे एक्शन करें। मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, मेनिंजीज इन्फ्लेम्ड है, तो हम ट्रीटमेंट के लिए सब एक्नॉट स्पेस में ड्रग्स भेजना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, कमर में टीका लगाते हैं, सब इनटू सब एक्नॉट स्पेस इन द लंबर रीजन, L2 L3 के बीच में, डायरेक्ट इनटू द CSF, that is called as intrathecal injection. Then we have intra-articular, if we are injecting the drug directly into the joint cavity, so this is called as the intra-articular, where two bones are articulating, then the joint space is formed, and if we are injecting into the joint space to treat the joint diseases, inflammation or any other problem, then this route is opted and this route is called as intra-articular। इंट्राकार्डियक, डायरेक्ट हार्ट के अंदर बेटा, डायरेक्ट हार्ट के अंदर। although it is not the favored route, it is discouraged nowadays, but this is the route. If you inject any drug directly into the heart, a dying patient, a patient suffering from any disease, and if that patient is going into cardiac arrest, cardiac failure, then we can inject epinephrine injection directly into the heart, intracardiac route। Then we have topical route. Topical route beta, if the drug is applied on the external surfaces and mucosa। But what is mucosa? सेकंड ईयर में पढ़ पढ़ के थक गए होगे, म्यूकोजा ड्रॉ करके थक गए होगे। म्यूकोजा होता क्या है, कौन बताएगा? Who will define mucosa in one single line? What is mucosa? चले मैं पकड़ता हूँ किसी को यार। ओके जी, छुप के बैठे हैं जो बैक रो में बैठे हैं, सबसे नीचे जो बैठे हैं जी, ये है जी रोल नंबर 3 हुमेरा। बताओ बेटा, व्हाट इज म्यूकोजा? नहीं बैठी हुमेरा? चलें इसको ऑप्शन करें जी, 5 ऑप्शन लगाएं जी हुमेरा की। रोल में 42 सादिया। सर रोल नंबर 3। सर मुझे लगा 3। था माइक म्यूट हो गया लेकिन नहीं हुआ था। हुमैरा। अच्छा बेटा बताओ, व्हाट इज म्यूकोजा? सर म्यूकोजा सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है एपिथेलियम लेमिना प्रोप्रिया और बेटा वो तो बेटा स्ट्रक्चर बता रही है और बहुत अच्छा बता रही है, होता है क्या है?
सर म्यूकोजा कोई भी सुपरफिशियल, सबसे अच्छा सुपरफिशियल बेटा, लेयर व्हाट इज होती स्किन? है स्किन के व्हाट बाद। इज स्किन? व्हाट इज स्किन बेटा? व्हाट इज स्किन? सर स्किन जी बेटा, सर स्किन में म्यूकोजा एपिथेलियम होती है, स्किन बेसिकली एपिथेलियम कनेक्ट। बेटा होता तो सारा कुछ है, बिल्कुल ठीक बता रही है क्या? एनीवन बेटा, एनी वॉलंटियर, व्हाट इज म्यूकोजा? Sir, it is a membrane to cover the body cavities. दोबारा बताओ बेटा, समझ नहीं आई। सर ये मेम्ब्रेन होती है जो बॉडी कैविटीज वगैरह कवर करती है। ठीक है, गुड गुड गुड, बॉडी वेरी गुड, सरफेस। शाबाश, ठीक है जी, बड़ा अच्छा बताया बच्ची ने जी। जी कैप्टन बताओ। सर हम इसको जेएटी की लाइनिंग कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ। सबने अच्छा बताया, सबने अच्छा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लेट्स समराइज इट। म्यूकोजा इज डिफाइंड एज बेटा इनर लाइनिंग ऑफ ऑल द ट्रैक्ट्स। जितने ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक्ट है, जेनिटल ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे पास जितने भी हमारे पास बेटा ट्रैक्ट्स हैं, inner lining of tracts, it is labeled as mucosa. What is skin? Skin is the outer lining of the body. तो बाहर हमारे सबसे जो आउटर लाइनिंग है, जो प्रोटेक्टिव चीज है बेटा, वो स्किन होती है। जो हमारे ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो सबसे पहली प्रोटेक्टिव लाइनिंग आती है, कोटिंग आती है, दैट इज म्यूकोसा। प्लीज लुक एट माय फेस। ये देखो, ये मेरा फेस है, ये सारी स्किन आ रही है। अब जब मेरा लिप स्टार्ट होता है तो स्किन खत्म हो जाती है, और उसके बाद अंदर से बेटा जो चीज स्टार्ट होती है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ स्किन के तौर पे, दैट इज द म्यूकोजा। ये मेरा नाक है बेटा, नाक के बाहर पे मेरी स्किन है, और जैसे ही मैं नाक के अंदर जाता हूँ तो फिर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, नेजल ट्रैक। तो वहां पे जो स्किन की रिप्लेसमेंट आ जाती है, एक्सटर्नल लेयर या फर्स्ट लेयर कह लें, दैट इज म्यूकोजा। दोनों का बेटा काम सेम ही होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी अदर स्टिमुलाई। सो बाहर कवरिंग जो है हमारा, फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है हमारा, दैट इज स्किन। जो ट्रैक्स के अंदर है बेटा, दैट इज म्यूकोजा। इफ वी अप्लाई द ड्रग ऑन द स्किन और म्यूकोजा, देन दैट रूट इज कॉल्ड एज बेटा टॉपिकल रूट। सिंपल इज दैट। एप्लीकेशन, पहले लाइन पढ़ो बेटा। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन एक्सटर्नल सर्फेसेस एंड म्यूकोजा इन द फॉर्म ऑफ पेंट्स, पॉल्टिसेस, प्लास्टर्स, लोशंस, क्रीम्स। ये सारी डेफिनेशन आपको इंशाल्लाह हमारी मैडम कराएंगी, मिस सुमेरा। बहुत अच्छी और काबिल फार्मासिस्ट हैं, वो बताएंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेंट्स, पॉल्टिसेस, प्लास्टर्स, लोशंस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एटसेट्रा। तो टॉपिकल रूट बेटा हमारे पास आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, म्यूकोजा पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, आंख में जो ड्रॉप्स डाल रहे हैं, जो आई के अंदर की लाइनिंग है, दैट इज आल्सो द म्यूकोजा, ठीक है। और ये जो कान के अंदर डालते हैं, जो हमारा ये ईयर का ट्रैक्ट है अंदर, ऑडिटरी कैनाल का जो ट्रैक्ट है हमारा, उसमें अंदर जाके म्यूकोजा होता है बेटा, ये भी हमारे पास टॉपिकल रूट है। Inhalational route, if we inhale the drugs, gaseous and volatile drugs, then that route is called inhalational route. इसकी most common example है हमारे पास बेटा ये। एडवांटेजेस बेटा खुद ही पढ़ लेना, लिमिटेशन खुद ही पढ़ लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये जो हमारे जो स्टूडेंट्स हम यूज कर, जो पेशेंट यूज करते हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स, इनहेलर्स, so they are called the inhalational, so this is called as the administration of drug via inhalational route. So we are done with today's lecture. If you have any question, you can ask, please. No question बेटा? कल के लेक्चर में से कुछ पूछना हो आपने? नहीं पूछना बेटा, या तो आप लोगों को बड़ा अच्छा सारा कुछ कन्वे हो रहा है, जब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या क्वेश्चन पूछा करो। आई रियली लाइक क्वेश्चन। जो बच्चा मुझे जितना कंफ्यूज करता है, वो बच्चा उतना ही मेरा फेवरेट होता है। यू कैन आस्क फ्रॉम योर सीनियर्स, आई ऑलवेज वेलकम क्वेश्चन। दबा के पूछो बेटा, कंफ्यूज करो, इतना कंफ्यूज करो कि मैं ये कहूँ कि बेटा आज नहीं, कल मैं पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, मतलब इतना कंफ्यूज करो मुझे। आई विल रियली लाइक यू। चलें, ठीक है बेटा। इट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात जल्दी पूछो बेटा, जल्दी जल्दी। सर एक बात बताते हैं सर, 12th एडिशन ले सकते हैं? अभी 13 एडिशन मार्केट में नहीं आया कैटसन का। बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एडिशन है। चल ठीक है, थैंक यू सर। ओके।